Hello and welcome to abhipedia, powered by the Money Wise. My name is Niharika Valia और मैं आपके साथ में आज हूँ so that we can discuss about what was NABARD grade A. उसका recently result आया है and NABARD grade A के अंदर 10th February को जो result आया, we have someone जिन्होंने वो paper clear किया है and he'll be letting you know उनकी side की story कि किस तरीके से उन्होंने इस paper को clear किया, what were the troubles he had और हम अगर इस paper को clear करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा so that we can continue and reach our dreams. उन dreams को fulfill कर सके जिनके लिए हम सब कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं इस टाइम. ठीक है, तो चलिए, this is Mr. Deepak Gadekar who has cleared the NABARD grade. He's a selected assistant manager now. So he's with us. तो एक बार उनसे पूछते हैं वो कौन है, कहाँ से उन्होंने शुरू किया था and what are the details जो हमें कवर करनी चाहिए जब हम इस एग्जाम के बारे में सोचते हैं. चलिए फिर, hello Mr. Deepak Gadekar and congratulations for the examination. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. I thank you the whole abhipedia team. So I would like to start my journey with, ma'am, I'm Deepak Gadekar. I belong to Jalna district of Maharashtra, and I have completed my BSc Physics graduation from Ferguson College, Pune, and right now I am pursuing MA Political Science in IGNOU University. Meanwhile, since last 3 years, I am preparing for civil services exams, and I am I'm stuck at certain stages. So there are certain stages in life where we have to take critical decisions, and I think NABARD was also to give the exam of NABARD was also one among them. So somehow I got introduced to this exam from one of my friends, and just started preparing it, and hopefully all the stages got cleared in one shot itself. So I'm happy to inform you that this was my very first attempt and I could clear it. Okay, so Mr. Deepak Gadekar ने ये first attempt में paper clear किया था and he has been preparing for civil services. तो वो civil services के लिए prepare कर रहे थे. During that period वो CAPF के लिए भी एक बार दे चुके हैं attempt. He was almost done with it. अभी तक result awaited है उनका. At the same time NABARD की तरफ जाना. See, this is where when we talk about हम लोगों को क्या चाहिए, consistency. When we talk about any एग्जामिनेशन जो हम लोग देते हैं, इन सब के अंदर आपकी एक मेहनत रिक्वायर्ड रहती है. कहीं ना कहीं हमारे लिए जगह बनी होगी, बस उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी और okay. So were you sure that you will be able to clear the examination? मतलब एक बार NABARD का जब सिलेबस देखा था तो you knew कि मुझे ये चीजें आती हैं, या फिर आपको लगा था कि नहीं मुझे कुछ करना है? मैम गुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं पे भी ऐसा शेड नहीं था कि एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही कम, क्योंकि फर्स्ट टाइम था. सेकेंडली सिलेबस भी बहुत अब्स्ट्रैक्ट था, क्योंकि जो 5 कंपोनेंट में एग्रीकल्चर के कहता हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, सॉइल साइंस, इरिगेशन, फिजिक्स और पॉल साइंस के बैकग्राउंड में एक कभी भी इसका कांटेक्ट नहीं आया था. और नाम में ये बैंक के कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो जायज है कि क्वेश्चंस भी मोस्टली द मोस्ट क्वेश्चन विल पर्टेन टू दिस सेक्शन ओनली, एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट. एंड सो ये फियर माइंड में हमेशा था. लेकिन यस, थैंक्स टू सिविल सर्विस प्रिपरेशन, एज यू मेंशन करेक्टली, कि हमारी मेहनत कभी ना कभी काम आती है, एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर यू. सो आई थिंक समव्हाट यही मेरे साथ हुआ कि उधर की पढ़ाई अच्छे से मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सका, और यहाँ की जो स्ट्रेटेजीज थी, यहाँ की जो अप्रोच था, भले ही वो फर्स्ट अटेम्प्ट का था, लेकिन वो बहुत ही सही मायने से वो वर्क हुआ मेरे साथ. सो कभी कभी डोंट नो शुड आई कॉल इट लक फैक्टर, बट ये हुआ है. तो एक कभी भी मन में नहीं था फेज 1 भी फेज 2 होने के बाद भी कि एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा. आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस, एंड बिकॉज न्यू थिंग्स वर गेटिंग टू नो, and I was learning the new things. So that's what, ma'am. So honestly speaking, I was not sure that I would be able to clear it. I think there when we talk about luck, कहीं ना कहीं luck भी उसका साथ देता है, जिसके पास एटलीस्ट अपना एक बैकअप तैयार हो, जो उसकी हार्ड वर्क होता है. बिकॉज इन एग्जामिनेशंस में कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हमारा पूरा लक पर चला. वो मेहनत कहीं ना कहीं जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं थी जो पे ऑफ कर रही. राइट. So when we talk about your studies, आप कितना टाइम डेडिकेट कर चुके हैं? मतलब जब आपने NABARD के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया तो कितने महीने या कितना टाइम आपने डेडिकेट किया था इस एग्जाम के लिए? राइट मैम, इस क्वेश्चन पे हो सकता है कोई बिलीव नहीं करेगा, बट अगेन आई एम ऑनेस्ट एंड आई नो द ट्रूथ. सो आई वुड लाइक टू शेयर इट व्हाट द ट्रूथ एंड व्हाट द रियलिटी. बिकॉज जब 26 फेब को एग्जाम्स थी, तो somehow on 23rd or in the evening of 22 itself I started preparing for phase 1. No one believes, ma'am, but this is the truth, because there are 7 components in phase 1.
आई वाज क्लियर कि 4 कंपोनेंट्स, सो फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है, और फोर्थ आई एम फॉरगेटिंग, तो वो मुझे करने ही नहीं है, कि वो क्लियर था कि अल्टीमेटली कट ऑफ 2 ईयर के क्वेश्चंस देखे थे कि लग रहा था कि ओके चलो ये हाथ में है, थोड़ा पेपर का 2-2 पेपर के न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रहता था, शायद उसका मेहनत मुझे इंग्लिश में हुआ, एंड आई एम होपिंग अराउंड आउट ऑफ 40 आई शुड गेट 35 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश इटसेल्फ। सो ये बिना प्रिपरेशन का था, उसका 3-4 महीने साल का जो हम पढ़ रहे हैं उसका का बेनिफिट हो रहा था। तो टारगेट के सामने थे ईएसआई, एआरडी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। यस, ऑफ कोर्स जनरल अवेयरनेस वेयर करंट अफेयर्स कम्स इनटू पिक्चर। सो ये चीजों को कैसा करना है, तो फिर यहाँ पे 3 दिनों में मैम मुझे पता है कि मैंने कितना, यदि बोलेंगे तो प्रिपरेशन है वो 3 दिनों का, लेकिन बैकग्राउंड में पढ़ाई 2-3 साल की होती है। एक्चुअल प्रिपरेशन यही था। तो फिर यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर देखने के बाद पता चल रहा था कि यही ट्रेंड है, यही चीजें है कि जो पूछे जा रहे हैं, यही रिसोर्सेस है। देन कम्स इनटू पिक्चर अभिपीडिया, वेयर दो आई हैव गिवन द इंटरव्यू इन अदर क्लास टू, बट आई मस्ट ऑनेस्ट व्हाट, जो जहाँ पे मुझे जिसकी हेल्प हुई है इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। तो आई वुड लाइक टू शेयर कि हियर बजट एंड सर्वेज वीडियो ऑफ रोहित मिड्डा सर, जो कि 1-1 घंटे के थे। उस वक्त लग रहा था कि 1-1 घंटा इस पे अब कैसे बिताया जाए, लेकिन जिस स्पीड से सर ने कवर किया और जिस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से, जो थरो एनालिसिस से किया है, तो फिर आई थिंक जो उस वो नोट्स बने वही नोट्स मेरे फेज 2 के लिए भी काम आए थे। और कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, हियर अगेन अभिपीडिया हेल्प मी, बिकॉज नो अदर क्लास, इफ रॉन्ग आई डोंट नो, बट जब मैं सर्च कर रहा था तो कंप्यूटर अवेयरनेस डालने के बाद यही कंपोनेंट था कि जिसका मुझे डर था कि मैं क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पे भी मुझे अभिपीडिया की ज्यादा हेल्प हुई है। So in a way 3-4 days preparation of phase 1, luckily I'm getting through it, and in phase 2 it's just preparation of 23 days. Still no one believes, but this is the reality where I have to prepare for, in somehow I'm subsequently I will tell what actually I did and what was the approach, but in terms of time frame this is the truth and this is the reality. But in that 3 days and in 23 days I was very ruthless and there was no billions to oneself. I have to be very नो अप करना है कि 23 डेज इतना नहीं कि चलो 4 घंटे 5 घंटे में नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे 10 12 14 घंटे भी कभी करना पड़ता है। सो आई थिंक दिस हेल्प मी, दिस रिगरस स्टडी हेल्प मी टू गेट थ्रू दिस। आई थिंक फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगेन योर यूपीएससी जर्नी हैज हेल्प यू लॉट, बिकॉज जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी, आपको टाइम भी चाहिए। वही सेम चीज चाहे आप एंड मोमेंट पर आकर प्रिपेयर कर गए, बट देन वो मेहनत जो थी वो पीछे से बनी हुई थी, बस उसी का बनी साथ। हुई थी। So there right it wasn't luck, it was all your pure efforts. thanks thanks. Yes. Okay, so when we talk about it, what was your timetable? कितना टाइम आप किस टाइम डेडिकेट करते थे कि मुझे किस चीज को कितना देना? बिकॉज आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि मैं किस चीज पर कैसे वर्क करूं। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इट, इनका अगर आप सुनेंगे तो इन्होंने डिसाइड करा हुआ था कि ये पोर्शंस मेरे वीक हैं तो मैं इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये एक चीज हो जाती है कि अपना अपना एक स्वॉट एनालिसिस होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। कहाँ जब आप पेपर देखते हो यू गेट द अपॉर्चुनिटी अलोंग विद योर थ्रेट्स कि कहाँ पर मेरे से पेपर नहीं होगा, वो नहीं पर वर्क करके यू गो विद द एग्जामिनेशन। सो व्हाट वाज योर एग्जाम टाइम टेबल व्हेन वी टॉक अबाउट इट? Right, ma'am. Here we have to be very choosy and selective, because sometimes I took the risk because it was literally risky game where I have to skip some topics or I have to take risk of some topics. It is not at all advisable to any candidates. It is not the correct strategy. However, the crux or idea behind it must be more helpful. वो लेना है स्टूडेंट्स ने या फ्रेंड्स ने हमारे, क्योंकि फिर बोलेंगे कि दीपक सर ने बताया कि पॉइंट छोड़ दो, ये बात अच्छी नहीं होगी। दिस इज नॉट माय मेन पॉइंट हियर टू आर्ग्यू। सो हियर मेरे खुद के टाइम लिमिटेशंस होने की वजह से मुझे पता था कि 7 सेक्शंस में फेज 1 में 4 टॉपिक का मुझे प्रिपरेशन नहीं करना है। वो खुद का अपना स्ट्रेंग्थ होती है, कभी पे कई पढ़ाई की होती है तो उसका फायदा यहाँ पे हो रहा था। तो 3 चीजें थी, ESI, ARD, एंड ESI, ARD आर द कोर in phase 2 and even in phase 1, so you can't take risk of it, and equally important should be given to current affairs, because इससे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इवन ESI, ARD में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो कि करंट अफेयर्स से मोटिवेटेड है, दो द सिलेबस point is different. So more in, as you asked me what was your strategy or how you deviated time, तो ये ज्यादा सेक्शन थे फेज 1 के जहाँ पे मुझे कंप्यूटर, ESI, ARD पे और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और in phase 2, ma'am, I would like to highlight this point. Student mostly neglect paper 1.
because there is equal weightage, 100 marks are there, but still there is psychological game. Don't know why student neglect it. Most everyone studies for ESI and ARD. There is ample ocean of resources where there are thousands of PDFs, books and whatnot, videos, everything. But even in less amount of time and just regular practice, you can get very large age in paper one. So I was clear कि ESI ARD चलो हमारे कुछ ऐसे सेक्शन है जिसका ज्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, पेपर वन अच्छा करेंगे. उसका कंटेंट का भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं था, थोड़ा एक आइडिया था, जो इतना सिलेबस ही इतना है, वहां से ही बहुत कंटेंट आता था, न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रहती थी, वहां पे भी कंटेंट मिलता था. The thing was to practice and not to practice on writing like on paper and pen. It was about to type in the stipulated time. So a challenge था. तो ये clarity आपकी खुद की होनी चाहिए. You should be very clear. Clarity of thought is also very important. Where what to do and more than what not to do. When one get to know what not to do, then he or she focuses more on what to do. So ये मेरे बारे में शायद वो पास्ट ईयर पेपर और सिलेबस की वजह से हो रहा था कि ये चीजें है कि जो नहीं करनी है, ये करनी है तो फिर वो डबल एफर्ट से करेंगे. तो मैम पेपर वन पे ज्यादा फोकस था, टाइपिंग और ये सब चीजें. पेपर टू में अगेन यहाँ पे दिख रहा था कि अब ज्यादा रिस्क लेना नहीं पड़ेगा. 23 days थे, there was enough time. I think 23 or 1 month is enough to read ESI ARD material. Here also you have to be very choosy. So in that way I think time was devoted, and mostly each and every word of phase 2 syllabus should be done with, otherwise it's risky job. Here you can't take risk, though I have taken in certain sections that I will narrate in the upcoming discussion. But this is how the whole time frame, as you asked me about the time frame and duration of time, I think I addressed your question. So basically you're trying to say कि आपने रिस्क जरूर लिया, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क था कि प्रीवियस Right, ma'am. Yes, sir. ईयर ये चीजें ऐसे हैं. सो दिस इज वेयर यू कैन लर्न कि जब आप पेपर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मत करो कि कुछ भी छोड़ दो कि मुझे ये नहीं आता उसलिए छोड़ दो, बट मेक श्योर यू नो कि वो पेपर के लेवल पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं अपना क्वालिटी कहीं और से कवर कर सकता हूँ. सो इफ यू कैन गेट एन एज ओवर योर कोर एरियाज तो भी आपका एग्जाम हो सकता है. राइट Right, ma'am. Right, rightly correct. Summarized. Right. तो हाउ डू यू रियली वर्क अपॉन द करंट अफेयर्स, बिकॉज आई थिंक करंट अफेयर्स को लेकर ज्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा तंग होते हैं कि कितना पढ़े, कहाँ तक पढ़े, किस लेवल तक पढ़े, वो चीज. Right, ma'am. So here again, करंट अफेयर्स में एटलीस्ट सिलेबस, स्टैटिक सिलेबस के बारे में चलो एक बार हो जाता है, कोई एक स्टैंडर्ड रिसोर्स ऐसा मटेरियल मिल जाएगा. लेकिन करंट अफेयर्स के बारे में जितना जल्दी हमें पता चले कि हमें ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है, मैम, ही और शी गेट्स थ्रू इट. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, बिकॉज इतने पीडीएफ, इतने वीडियोस, इतने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स में इतना अवेलेबल है. Here again, I too relied on many sources. Here again, abhipedia helped me in say question answer format current affairs. So yeah, जर्नी में कि जिनके भी मैंने फॉलो किए हैं. लेकिन यहाँ पे हमें बहुत चूज होना लगता है. तो एक क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पता चलेगा? अगेन मैम, थैंक्स टू पास्ट ईयर पेपर एंड सिलेबस. सो ये ही चीज है कि आपको पता चलता है कि अरे इस पे फोकस करना है. ये फैक्ट्स है, अननेसेसरी फैक्ट्स मैम कई टेलीग्राम चैनल पे रहते थे. स्टूडेंट्स क्विज लेते हैं, हम देखते हैं, तो मैम एकदम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं बहुत स्टूडेंट्स. एंड कि ये नहीं होता है. हम इन पे है अलग लगता है, इसलिए तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीजें कि जल्दी से जल्दी मैम कोई नहीं आने वाला है. क्लास वालों के सबके एक लिमिटेशन से आपके एक हद के बाद एक हर एक स्टूडेंट को ही खुद को करना है, खुद को एक एज फैक्टर ढूंढ के आगे जाना होता है. तो आई थिंक करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल जर्नी. However, the right direction and the right efforts plus revision of it helps a lot, helps immense a lot. So yeah, इस वे से होना चाहिए. तो यहाँ पे कुछ एक दो क्लासेस की वीडियो, राइट, बहुत वास्ट होता है, कंफ्यूजन भी बहुत बढ़ता है. तो इसका होने के बाद ऐसा लास्ट में 5-4 पेजेस का सिर्फ नोट बनना चाहिए हमें, सिर्फ फैक्चुअल. मोस्टली द क्वेश्चन पर्टेन टू फैक्चुअल कि क्या है, कैसा है, व्हाट आर द फिगर्स, व्हाट इज, बाय हुम, बाय व्हाट, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. लेकिन वो एक टाइम पे एक फैक्ट्स का बढ़ने के बाद फिर वो कंफ्यूजन बढ़ता है. इसलिए यू शुड बी वेरी habitual with it, and to be habitual with something you have to revise it again and again. I think this is the way one should handle the current affairs. So according to you, आपने कितने टाइम के करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखा था? मतलब 3 months, 6 months, एग्जैक्टली कितना टाइम का रफली? Right ma'am, around 6 months. 6 months. अगेन मोस्टली एग्जाम्स के लिए हम वही चलते हैं कि 6 months के आसपास का टाइम तो हमें डेडिकेट करना ही होता है. ओके, सो right. And ma'am, just a suggestion.
ma'am, should I give it one suggestion? Yes, whenever someone gets the PDF of say any current affairs magazine or whatever they are referring to, here you should apply the some filter, like just search agriculture word, just search rural word, just search NABARD, SHG, NGOs or the syllabus mentioned words. मैम आपका फिल्टर आधा यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, and this Agreed. is the way I have done it. आपने I की know. पॉइंट ढूंढे थे। राइट राइट राइट, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था मैम, और सब बोलते हैं फिर आप क्या बात कर रहे हो, 20 दिनों में कैसा पॉसिबल है। मैम दिस इज द वे समवेयर यू हैव टू अप्लाई द लाइक से फिल्टर्स और द स्ट्रेटेजी योर ओन एनर्जी, so that's why I wanted to make a point. So I think somewhere what has happened is आपका हार्डवर्क जो कंसिस्टेंसी से चला आ रहा था along with आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी काम की गई है। आप देखेंगे when he studying current affairs तो वो देखकर चल रहे थे कि exactly NABARD के लिए क्या relevant करंट हो जाता है करंट अफेयर्स, बिकॉज आप हर रोज कितना कुछ होता है आपको नहीं पता इस एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है, तो आप कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन नोट डाउन कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ओके, राइट राइट। तो व्हाट वाज द डिफरेंस, मतलब आपका खैर नो डाउट आपने प्रीलिम्स में कम टाइम लिया, बट कहीं ना कहीं आपने वो चीजें काफी समय से प्रिपेयर भी की हुई है, तो आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट के लिए प्रीलिम्स में और मेंस में फर्क कहाँ आना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स के हिसाब से कैसे चलना चाहिए, और उसका जो डिफरेंस है वो मेंस से कैसे है? राइट 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 मैम। सो जब एग्जाम हो रहा है पास, सब चीजें होने के बाद, और आई वुड से कि फेज 2 होने के बाद, एग्जाम देने के बाद पता चल रहा था कि यदि किसी को प्रिपरेशन करना है तो फेज 2 का सिलेबस सामने रख के प्रिपरेशन होना चाहिए, जो कि उसी फेज 1 के पहले में बोला, समझो 2021 का नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक, तो व्हाट शुड बी द लाइक क्या बोलते ब्लूप्रिंट क्या होनी चाहिए हमारी, किस ढंग से जाना है, तो पास्ट ईयर पेपर 2-3 इयर्स के और सिलेबस ऑफ फेज 2। सो ये जब होगा तो ईएसआई और एआरडी मैम इतने थरली हो जाता है कि आई थिंक फेज 2 10 दिनों में भी लेंगे हो तो शायद वन में गेट थ्रू इट, बिकॉज लेकिन वो ऐसा मतलब नहीं कि जब सिलेबस पढ़ लिया हो गया, उसका मैं स्टडी की भी बात कर रहा हूँ, वही डीप और अच्छे तरीके से ऑफ कोर्स। तो दिस वे, एंड सेकेंडली मैम लास्ट डे इन वन ऑफ इंटरव्यू आई सेड कि फेज 1 प्रिवेंट्स एंड फेज 2 मेक्स यू ऑफिसर, कि ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फेज 1 के एक अपना एक फिल्टर है, आपको स्टूडेंट्स इतने हैं एग्जाम देने को तो उनको निकालना है, तो एक जस्ट इट्स जस्ट फिल्टर। सो एक हद तक देखो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और थोड़ी बहुत रिस्क है इन केस टाइम कंस्टेंट यदि किसी के साथ हो रहा है, यू कैन थिंक ऑफ इट, अदरवाइज डोंट गो विथ स्ट्रेटेजी। ईच एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर का भी उतना है, क्योंकि 0.3 से भी कंप्यूटर का आपका कट ऑफ रहेगा तो पूरा फेज 1 रहने वाला है, so you can't afford it, so हर एक सेक्शन को उतना रिस्पेक्ट देना ही अपना है। तो आई वुड से कि फेज 2 का प्रिपरेशन विथ सिलेबस एंड विच विथ ईच एंड एवरी पॉइंट, इसमें फेज 1 हो जाता है, except that quant, reasoning, English and other components that one has to prepare separately. And for phase 2 the equal or more, I would say give more time to paper 1, that only help you to get age of 10 or 15 मैम, easily 10-15 मार्क आ जाते हैं यहाँ पे, पूरे निकल जाता है पूरा पसीना कि कैसे मिला है, एक मार्क कैसे मिला है जब पेपर 2 के इसमें। So I think this way, and about resources and what to restrict and what not to do, here again you would say कि दीपक जी यही बता रहे हैं कि past year paper मैम, but this is the key for me, यहाँ से ही पता चल रहा है कि इसमें भी क्या कंपोनेंट है, कि चलो सॉइल साइंस देखो, चलो इरिगेशन देखो, और एक जस्ट ऐसे दिमाग में आ गया अभी पॉइंट मैम, समटाइम्स 2-3 questions are getting reflected again in phase 2 and this year to happen with that wool question. सो ये होता है, तो फेज 1 क्वेश्चन के पेपर होने के बाद प्लीज डू फोकस ऑन द क्वेश्चन पेपर ऑफ फेज 1 अगेन। एंड हियर माय वन एडवाइस वुड बी मैम, दोनों भी पेपर का मैंने अभी तक कट ऑफ नहीं देखा है, ना तो मैंने मेरे स्कोर निकाले, इट्स माय जस्ट रैंडम प्रेडिक्शन दैट आई माइट स्कोर अराउंड एक्स एंड वाई, ये मेरी रेंज होगी। तो अल्टीमेटली आपको आगे जाना ही है, एग्जाम आगे देना ही है, तो फिर एक कट ऑफ निकल के क्या करोगे, चलो फेज 1 निकल रहा है तो भी पढ़ना है, नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के सब कहीं दूसरी जगह पे जाना है, ये तो करना ही है ना। सो आई थिंक वन में डिफर टू दिस, बट मुझे लगता है कि कर रहे हो ना, आ रहे हो, फेज 2 हो गया है ना, तो फिर चल रहा था बैकग्राउंड में पढ़ाई आगे की चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू हो या आगे की मेरे कुछ दूसरी पढ़ाई हो, तो ये भी थोड़ा एक थीम होती है। टॉक अबाउट इट, इन एग्जाम्स के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, आप ये नहीं सोच सकते हो ये वाला अच्छा का छोड़ देते हैं पढ़ना, अल्टीमेटली आपको पढ़ते रहना पड़ेगा ही।
ये इससे तो स्केप नहीं है मैम, ये तो कभी छूट, जब तक लिस्ट में नाम नहीं तब तक उस इससे स्केप नहीं है, इस सब ट्रैप बोलो या इस जर्नी से बोलो। तो आई थिंक दिस वे। और कुछ डीप में इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ क्वेश्चंस होगा तो आई डोंट नो हैव आई एड्रेस्ड योर क्वेरी और नॉट, बट इन केस नॉट देन प्लीज डू आस्क अगेन। Obviously, I think as a student जब सामने आते हैं तो they are always like कि हमारी strategy क्या है, आप क्या कहते हो कि हमें क्या करना चाहिए, because ultimately the basic reason for bringing you to the platform is कि बच्चों को पता चले कि किस तरीके से उनको पढ़ना है। because अगर किसी को भी NABARD के लिए जाना है तो वो सोच रहा होगा कौन सी बुक्स, कौन सा स्ट्रेटा, कहाँ से पढूं और कहाँ से ना पढूं। Okay, till now we have got one word, that is current affairs पढ़ रहे हो तो फोकस करो कीवर्ड्स के ऊपर, ये मत कीजिए कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो, you are studying this और वो अच्छे से कर रहे हो और वो आप रिटर्न में करते हो, अगेन वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है बिकॉज रिवीजन करनी इजी है। सो व्हाट नेक्स्ट यू डू यू थिंक कि एग्जैक्टली स्ट्रेटजी? Strategy, yes ma'am, yes, I would like to more focus on strategy. Some intangible aspect, like on in terms of attempt. In phase 1 I have attempted 175 to 180 questions, and in phase 2 I have attempted 63 out of 65. So even in the other interview I said that मैम एक लेवल तक हमें वो करना होता है आउट ऑफ 200, और टाइम कंस्टेंट होता है यहाँ पे, सिर्फ 2 घंटे हो गए, 200 क्वेश्चंस हो गए, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग स्पीड, यहाँ पे आपका कंप्रिहेंशन, यहाँ पे आपका फास्ट डिसीजन मेकिंग, ये कि क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वी आर टेकिंग द डिसीजंस। सो यही क्रॉस चेक कर रहे हैं, 2 घंटे में 200 डिसीजन लेने हैं, कैसे ले रहे हैं। तो मैम मोस्टली स्टूडेंट अटेम्प्ट्स अराउंड 120 130, दैट इफ रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, बट यही है 120 130 बहुत लगता है लोगों को, लेकिन यहाँ पे बहुत एज आप खो रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 दिन की ये पढ़ाई है, तो यहाँ पे मैम 120 130 होने के बाद आगे के जो क्वेश्चंस है, इट डजंट मीन दैट एवरीवन नोज अबाउट इट, बट इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि नो वन नोज अबाउट एनीथिंग। हाफ हो या 1/3 हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप आ जाते हैं, एंड थैंक्स दैट नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इज आल्सो फेयर इनफ, 1/4 है। आप जब 4 रॉन्ग करोगे तब आपका 1 मार्क जाने वाला है। टेक द रिस्क एंड अटेम्प्ट ओपन माइंडेडली, एंड इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ the mindset should be, I am not here to lose anything, I am just here to perform, and come what may, I have to face it, and ultimately no one is gonna hear my excuses. So क्या है, अभी हाथ में क्या है, परफॉर्मेंस अच्छा करना है। तो यही है मैम, 170 180 फेज 1 आता है, फेज 2 में इतना अटेम्प्ट, अगेन वन में डिफर टू इट, बट इफ समवन गेट इवन a pinch of idea from it, I would be happy that someone get the idea. Then again, that syllabus and PYQ should, past year paper should be bible of your preparation. Focus on the government original resources. Here, like the abhipedia has done good job in economic survey and budget, even in NAFIS and other many reports, NABARD annual report. So in that way, the जो original resources है वो खुद के पढ़ के आप, हो सकता है क्लासेस के क्वेश्चन आंसर्स में जाओ और वहाँ पे सॉरी वहाँ पे आप क्रॉस चेक करो खुद को कि क्या मैं सही ढंग से पढ़ रहा हूँ। उनमें 4-5 मैम मेजर रिसोर्सेस है, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट है, नाफिस है, उसके बाद बजट सर्वे, देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, मैम दिस थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द सिलेबस एंड नो वन मस्ट टेक द रिस्क टू निग्लेक्ट इट। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर आना ही नहीं है, जो अब यहाँ पे मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के ओरिजिनल सोर्सेस है। एंड देन द कम्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स, तो ये थोड़ा एस्पेक्ट होता है कि जो हेल्प करता है। देन लर्न द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द डिमांड। मैम एज आई मेंशन्ड दैट आई शिफ्टेड फ्रॉम यूपीएससी जर्नी टू दिस एग्जाम, देयर वाज ड्रास्टिक चेंज इन द approach because they were, the question of nature in the UPSC was more conceptual and applied, here was more factual. So ये बहुत ये हो रहा था कि अरे कैसे इसको कोप अप करें, क्योंकि पेज 1 के कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो अलोकेशंस मैम 160 करोड़ 161 करोड़ 162 करोड़, अरे सब मैम लास्ट में 5 ऑप्शंस होते हैं, तो सब एक हाथ पे लगता है कि सबके सब करेक्ट है। सो हियर द लाइक द डिमांड हिट होनी चाहिए कि क्या डिमांड है इनकी, चलो इस वे से है, देन चैनलाइज। तो फिर ऐसे फैक्ट्स याद रहने के लिए मैम क्या हैंडी है सबसे ज्यादा, कि मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉर्मल थिंग, बट इट इज निग्लेक्टेड बाय द मेनी स्टूडेंट्स। देन मैम आई वाज क्लियर दैट आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, कि यहाँ पे मैंने जैसे बोल दिया कि अभिपेडिया पे मैंने सर्वे और बजट किया है, then I would not go to any other resources. In case यहाँ पे मुझे लगा, in case मुझे यहाँ पे लगता कि ये अच्छा कवर नहीं हुआ है, then I might have gone there. But
एक एक घंटे में जो एक एक दो दो सेक्शन ही सर ले रहे हैं और 7-8 वीडियो 5-6 वीडियो होंगे, कुछ याद नहीं है मुझे अभी। तो इसका मतलब है कि कंप्रेहेंसिवली कवर हो रहा है, एग्जाम का डिमांड भी हिट हो रहा है, सर पास्ट ईयर पेपर भी क्वेश्चन भी कुछ उसमें कवर करते थे, तो आइडिया आ रहा है कि वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। एंड देन रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, देन वन मस्ट रिस्ट्रिक्ट एंड चलो आगे चलते हैं, रिस्ट्रिक्ट, रिवाइज इट, मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। सो यही होता है कि करंट अफेयर्स के बारे में 4-4 क्लासेस के एक ही मंथ के वीडियो हो या मैगजीन्स हो, ये पढ़े जाते हैं, तो फिर टाइम और एनर्जी इसमें चली जाती है। मेक योर शॉर्ट नोट्स, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, and I think this is what in phase 1. And regarding phase 2, you need the help of Tamil Nadu Agriculture University website. I took in very short format और थोड़ी ही हेल्प ली है, ज्यादा नहीं, लेकिन जब वो मुझे एंड में पता चला कि ये वेबसाइट अच्छी है, उन्होंने अच्छा कवर किया है टॉपिक्स, बहुत से टॉपिक है कि डायरेक्टली उन्होंने अच्छे कवर किए हैं। तो और पिक्चर फॉर्मेट में समझो कोई समझो पंढरपुरी बफेलो की एक स्पीसीज है, तो एक इमेजिन नहीं होता है कि सब बफेलो जब याद में आता है तो एक फिगर याद में आ जाती है कि दिस इज द बफेलो, but there are 10 species in it, they belong to different regions, their specifications are different, and this get to your mind only after the pictorial memory. When you get it into your pictorial memory, then only one is able to recall it. And same happen in case of horticulture, in animal husbandry. There are not only buffalo and poultry, but there are 8 7 9 10 animals we have to prepare, and there are thousands of species of it. So at the end it becomes very bulky. So अपने तरीके से उसे करो, अपने खुद का एक वे ढूंढो और उसको किया जा सकता है। I think this is how this is the strategy pertaining to phase 1 and phase 2 directly. Hey, so then I hope I addressed it. Pointers there when he is talking about, sir क्या कह रहे हैं, listen to this. Number 1, previous year papers पे ध्यान दो, because when you start preparing, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो और ये कितना गहरा एरिया जहां पर आप जा रहे हो। And secondly क्या किया, proper notes. And this is what I think as a student मुझे भी लगता था, अगर मैं एक जगह से पढ़ रही हूँ, मैंने वही चीज दोबारा देखी, तीसरी बार देखी, चौथी बार देखी, मुझे उसी तरीके से याद रहेगी। सो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर प्लेस, कि मतलब जैसे यू हैव ऑप्टेड फॉर अभिपीडिया से आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना है, सो यू हैव कंटिन्यूड वाचिंग इट एंड वो याद हो जाती है। एंड थर्ड पॉइंट दैट कम्स इज पिक्टोरियल लर्निंग। व्हाट हैपेंस इज वी ऑल हैव पिक्टोग्राफिक मेमोरी। मतलब क्या हुआ, मुझे कोई फोटोग्राफ दिखी, मुझे वो ज्यादा जल्दी याद होगी एज कंपेयर टू डेटा। तो आप अपने फ्लो चार्ट्स बनाकर रखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल इन क्रैकिंग द एग्जाम्स rather than आप सिर्फ डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज को भी हाईलाइट किया है। सो मेक श्योर व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, तो आप लोग इसी अप्रोच से कहीं ना कहीं एक अप्लाई करने की कोशिश जरूर करें, बिकॉज पेपर के एंड में आकर आप सब कुछ दोबारा नहीं पढ़ सकते हो। यू हैव टू चूज। He took a calculated risk. Along with that, what I can see is एक decision making तरीका होता है कि you have seen 200 questions. एक हो सकता है you are scared कि 200 question कैसे होंगे। वो क्या कर रहे हैं? He said, okay, I have decided मुझे इतने questions करने हैं और इतने पर मैंने focus रखना है। And when चलो 4 questions के बाद एक question गलत 0.25 जाएगा ना, कोई problem नहीं। So this is where we talk about calculated risk. आप जितना इन चीजों पर फोकस करते हैं, आपके लिए उतना इजी हो जाता है। Okay, so when we try to conclude the entire scenario, so according to you, what is your advice? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जहां पर बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, where they should work upon in order to become a successful organization? आप इतनी अच्छी organization में enter करते हो, how do you become a part of this organization? So what is your advice? आपको क्या लगता है? Right, ma'am. Right, ma'am. Again, know the answer of why. One must know the answer why we are entering into it. What is the organization? What's its motto? And what I would be able to contribute in it. ये सबके आंसर जब क्लियर हो गए, तो एग्जाम की डिमांड समझ में आ जाएगी, तब सब क्लियर हो जाता है मैम। तो व्हाई इतना इजी नहीं है इसका आंसर, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकोगे। देन मैम खुद पे भरोसा और एक डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी, ये जो चीजें है कि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, पार्टीज हो या फ्रेंड्स के कुछ बर्थडे, कुछ सबको पता होता है इस फेजेस में क्या क्या हमें सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। एंड वन शुड एबल टू रिस्ट्रिक्ट वन सेल्फ, and whatever you are taking risk or channelizing your energy or your resources, they should be based on experience of someone. I have listened to many toppers. So आपको कहाँ से ना कहीं तो ये हिंट लेना पड़ना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा तो ज्यादा फोकस होता है मैम कि क्या नहीं करना चाहिए, ये जितना जल्दी पता चलेगा तो क्या करना है, यहाँ पे आप अच्छा काम करते हो। देन बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ
and to parents, be honest. Ultimately आपको इनको ही जवाब देही है, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते किसी को, आप खुद को कभी झूठ नहीं बोल सकते हो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, एंड अलोंग विथ इट लाइक छोटे छोटे चीजें जैसे मेडिटेशन हो, स्पोर्ट हो, आप कुछ हॉबीज भी परस्यू करो, ये सब में आता है, सब एक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट थिंग्स है. सो वन शुड बी holistically study the all the things and keep in mind that we are getting many new things to learn. बहुत सारे नई चीजें पढ़ने को मिल रही है. एंजॉय दिस प्रोसेस एंड हैव फेथ इन वनसेल्फ, बी रुथलेस. बिनोवलेंट खुद से होके ये नहीं होगा, आपको रुथलेस बनना पड़ता है प्रिपरेशन में. होने के बाद यू कैन चिल, यू कैन रिलैक्स, बट this is the way, and I think be positive in the approach, be happy and enjoy the process. I think this is the word I would like to share with the students. So when we conclude about it, what I could find out is puri process se during the conversation. Number one is consistency. As a person, Mr. Deepak Gadekar has been consistent in his efforts. Number one. Number two, आप अपना stress कितने अच्छे से manage करते हो. Number three, आप कितने focused हो. Because obviously बात है, जब आप एक paper के लिए prepare करते हो, आप अपने आप से पूछते हो कि क्यों कर रहा हूँ मैं? What is the reason? क्यों मैं छोड़ूं वो parties? क्यों छोड़ूं अपना phone? क्यों छोड़ूं Instagram, social websites? Just because मुझे पढ़ना है. So you need to find out what is in this particular job जिसके लिए आप सब छोड़ सकते हो. Or I don't think there's a trouble अगर आप थोड़ा सा sacrifice करते हो, because if he can be here someday, one of you would be standing in front of me and we'll be asking about your journey of success. Definitely. Thank you so much Deepak for being here. I hope आप सबको इससे कहीं ना कहीं एक inspiration और एक वो basic knowledge मिली हो कि अब हम क्या करें कि हम भी कहीं ना कहीं ऐसी situation में आए जहाँ पर our family feels proud of us and at the same time वो चीजें जो चीज हम अपनी life में करना चाहते हैं उन्हें complete करें. So we'll be bringing up more for you guys. Thank you so much, Deepak, for being here. And thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. Thank you, abhipedia team, and all the best to all the fellow students and friends. Good luck to all. Thank you once again. Thank you, Deepak. Yes, thank you.